بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کالج میں بیٹھی کلاس میں لیکچر لے رہی تھی کہ مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں صبح گھر سے نکلی تھی تب بھی میری طبیعت ایسی ہی تھی۔ اب جب لیکچر ختم ہوا اور تمام لڑکیاں کلاس سے باہر نکل گئیں تو میں بھی اٹھی اور ایک دم سے میرا سر چکرایا اور میں نے دیوار کا سہارا لیا تھا تاکہ میں نیچے نہ گر جاؤں۔ ایک دم سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں ویسے ہی کھڑی رہی۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو میں آہستہ سے چلتی ہوئی باہر گراؤنڈ میں آ کر بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے اپنی طبیعت میں یہ بدلاؤ کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا اور میری طبیعت کی خرابی جس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی اس کو جانچنے کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اور میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے جو بتانا تھا وہ میں سن نہیں سکتی تھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور میرے سارے ٹیسٹ کیے، اور میں ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھی دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ ڈاکٹر مجھے ایسی کوئی بات نہ بتائے جیسا میرا دل کہہ رہا تھا۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تو ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور انہوں نے جو بات مجھے بتائی اس کو سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میرا نام سہرش ہے اور ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ میرے باپ کا اپنا بزنس تھا۔ میری بڑی بہن MSc کرنے کے بعد ایک کالج میں لیکچرار تھی اور میں BSc کر رہی تھی۔ میری ماں بھی ہر وقت اپنی سہیلیوں میں مصروف رہتی، کبھی پارلر کے چکر لگا رہی ہوتی یا اپنی سہیلیوں کی طرف ہوتی جہاں ان کی پارٹی چل رہی ہوتی تھی۔ وہ گھر میں کم ہی وقت گزارتی تھی، لیکن میرا اور میری بہن کا آپس میں بہت ہی پیار تھا۔ میرے والد شروع سے ہی کاروبار میں مصروف ہوتے تھے اور میری والدہ اپنی سہیلیوں میں مصروف ہوتی تھی۔ اس طرح بچپن ہی سے ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے زیادہ قریب تھیں، اور میری بہن تو میرے پڑھائی کے معاملات میں بھی کافی مدد کر دیتی تھی۔ میری بہن کی منگنی ہو چکی تھی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی شادی طے ہو نہ پائی تھی۔ مہینے میں ایک دفعہ تو ہمارے گھر میں بھی پارٹی ہوتی تھی جس میں میرے والد کے اور میری والدہ کے کافی جاننے والے آتے تھے۔ وہ سارے امیر ترین لوگ تھے۔ مجھے ان پارٹیوں سے کوئی بھی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میرے ددھیال والے گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے ددھیال میں میری دادی، دادا اور میرے 2 چچا تھے جو گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھے۔ صرف میرے باپ نے ہی شہر میں آ کر اپنی زندگی آباد کر لی تھی اور شہر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ جب ہم چھوٹے تھے اور ہمیں اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم گاؤں چلے جاتے تھے، اور گاؤں میں جو ہمارا وقت گزرتا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے میری ماں نے ہمارے گاؤں جانے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ میری ماں کو گاؤں جانا پسند نہیں تھا۔ وہ جتنے دن بھی گاؤں میں رہتی اپنے منہ کے مختلف زاویے ہی بناتی رہتی، نہ کسی سے ہنس کر بات کرتی تھی جس سے میری دونوں چچیاں اور میری دادی کے دل میں بات آتی۔ اور انہوں نے کئی دفعہ میرے باپ سے اس بات کا اظہار کیا کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتی، تو میرا باپ یہ کہہ کر بات ٹال دیتا کہ وہ شہر کی عادی ہے، اسے گاؤں کا ماحول پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارا بھی گاؤں جانا اب بند ہو چکا تھا۔ جب میرے چچا لوگوں کو شہر میں کام ہوتا تو وہ ہمارے گھر آ جاتے اور ان کے ساتھ دادا اور دادی بھی آ جاتے تھے اور کچھ دن ادھر رہ کر چلے جاتے تھے۔ جتنے دن دادا اور دادی ہمارے گھر رہتے تھے تو وہ گھر کا ماحول دیکھ کر جلتے کڑتے رہتے اور حیران ہوتے کہ سارا دن ہم دونوں بہنیں گھر میں اکیلی ہی رہتی ہیں، اور ان کا بیٹا تو کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے اور بہو کی تو دوستوں سے گپ شپ ہی ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کئی دفعہ میرے باپ کو اس چیز پر بھی روکا کہ تم لوگوں کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، اپنے طور طریقوں کو بدلو یا تو گاؤں میں آ جاؤ، لیکن میرے باپ نے کہا کہ اب ہم شہر کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہمارا گاؤں میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے ہم گاؤں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میرے چچا لوگوں کا بھی ہمارے گھر آنا جانا کم ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب ہم جاتے ہیں تو میری ماں ان سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی، تو اس لیے وہ لوگ اب آنا چھوڑ چکے تھے۔ اور ہمیں بھی اس چیز کا بے حد ملال تھا کہ ہم بھی اپنے چچا کے بچوں سے گھل مل نہ سکے اور نہ ہی ان سے دوستی کر سکے۔ لیکن میرے ماں باپ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ میری بہن جس کالج میں پڑھاتی تھی وہاں پہ ان کا ایک کولیگ تھا۔ میری بہن اور ان کا کولیگ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔
मेरी बहन ने इस बात का जिक्र मेरी वालिदा से किया तो मेरी वालिदा को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो खुले जहन की मालिक थी और उनका ख्याल था कि जिन बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर उनके दरमियान ज़हनी हम आहंगी होगी तभी वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और उनका ये भी मानना था कि इस्लाम भी हर लड़की को इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है। इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र मेरे बाप से किया तो मेरे माँ बाप ने बाहमी मुशावरत से लड़के को अपने घर खाने पर बुलाया। उन्हें भी उस लड़के से बातचीत करके अच्छा लगा और उन्हें वो पसंद आ गया। इस तरह रिश्ते की बात आगे बढ़ी। लड़के वाले भी अच्छे लोग थे और उन्हें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। इस तरह मेरी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और शादी कुछ अरसे के बाद करने का फैसला किया गया। मैं भी अपनी बहन की शादी पर बेहद खुश थी और मैंने उस शादी पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरे बाप के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस तरह मेरे माँ बाप ने मेरी बहन के जहेज़ पर दिल खोल कर खर्च किया। हालांकि मेरी बहन मेरे माँ बाप को मना ही करती रही, क्योंकि उनका इरादा शादी के बाद बैरून मुल्क में मज़ीद तालीम हासिल करने का था। मेरी बहन का ये ख्याल था कि जब उसने और उसके शौहर ने बाहर ही चले जाना है तो जहेज़ के नाम पर इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के वालों ने भी जहेज़ लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे और खुले जहन के लोग थे। लेकिन मेरी माँ और बाप का ख्याल था कि हमने तो अपनी बेटी को जहेज़ देना है, क्योंकि ये दुनिया की रीत और रवाज बने हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह वो भी ये बात सुनकर खामोश हो गए। मेरी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मेरी बहन की शादी पर मेरे ददियाल वाले भी आए थे, क्योंकि शादी पे उनका आना ज़रूरी था। इसलिए मेरी माँ ने भी उनके आने पर कोई एतराज़ ना किया। लेकिन मेरे दादा दादी ने इस बात पर एतराज़ किया था कि हमारी पोती का रिश्ता करते वक्त एक बार तो हमसे पूछते या मशवरा लेते। लेकिन मेरे बाप ने कहा कि हमें लड़का अच्छा लगा और हमने रिश्ता तय कर दिया, इसमें मशवरा लेने की क्या ज़रूरत थी। ये बात सुनकर मेरे दादा दादी खामोश हो गए। मुझे अपनी बहन की शादी की खुशी भी थी और मैं उदास भी थी, क्योंकि जब मेरी बहन की शादी हो जानी थी तो मैंने घर में अकेली हो जाना था और इस अकेलेपन का सोचते हुए मुझे अजीब सी घबराहट होती थी। शादी के बाद मेरी बहन अपनी ससुराल की दावतों में मसरूफ़ हो चुकी थी और कुछ दिनों तक उसने बैरून मुल्क चले जाना था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ वक्त अपनी बहन के साथ गुजार लूं। पता नहीं ज़िंदगी में कभी ये मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं अपनी बहन के ससुराल चली गई ताकि कुछ दिन अपनी बहन के साथ गुजार सकूं। मेरी बहन मुझे अपने घर में देखकर बेहद खुश थी। मेरी बहन के शौहर ने भी मेरा भरपूर इस्तकबाल किया और मेरी बहन के ससुराल वाले भी मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। इस तरह जहाँ जहाँ भी मेरी बहन की दावत होती, मेरी बहन मुझे अपने साथ ले जाती। मेरे बहनोई की खाला ने मेरी बहन और उसके शौहर की दावत की तो उनके साथ मैं भी उनके घर गई। उनका घर बेहद खूबसूरत था। हमारा घर भी किसी से कम नहीं था, लेकिन मैं उनके घर को देखकर तारीफ किए बिना ना रह सकी। मेरे बहनोई के खाला का बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था और वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसका मेरी तरफ इस तरह देखना मुझे अजीब लग रहा था। जितनी देर मैं वहाँ रही, मैं खुद को गैर महफूज महसूस करती रही। इसलिए मैं चाहती थी कि जल्दी से ये दावत ख़त्म हो और मैं वापस चली जाऊँ। दावत के बाद जब हम रुखसत होने लगे तो मेरे बहनोई की खाला ने हमें काफ़ी तहाइफ दिए। उन्होंने मुझे भी तोहफे दिए, लेकिन मैं लेने से इनकार कर रही थी। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती तहाइफ दिए कि जब तुम अपनी बहन के साथ आई हो तो तुम भी इन्हीं मेहमानों में शामिल हो। इसीलिए मैं मज़ीद उन्हें इनकार ना कर सकी और अपनी बहन के साथ वापस आ गई। इस तरह मैं मज़ीद कुछ दिन अपनी बहन के घर रही और जब मेरी बहन बैरून मुल्क चली गई तो मैं भी अपने घर वापस आ चुकी थी। मैं अपनी बहन के साथ गुजारे हुए ये दिन कभी भी नहीं भूल सकती थी। इस तरह मैं अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन का मेरे माँ बाप को फ़ोन आया कि मेरे ससुराल से सहरिश के लिए रिश्ता आया है। वो लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा है और वो लोग भी काफ़ी अमीर तरीन है। मेरे माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो उन लड़के वालों को भी अपने घर बुला लिया और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं अपनी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं अभी मज़ीद पढ़ना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ने समझाया कि तुम शादी के बाद तालीम हासिल कर सकती हो, लड़के वाले तुम पर किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाएंगे। इस तरह मेरे माँ बाप को लड़के वाले भी अच्छे लगे और मेरे माँ बाप भी एक दफ़ा उधर चक्कर लगा आए थे।
दोनों तरफ से बात पसंद थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन लड़के वाले मंगनी करने की बजाय शादी पे जोर दे रहे थे। लेकिन मैं फ़िलहाल शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे इम्तिहान 1 माह के बाद थे। मैंने अपने वालिदैन से कहा था कि मैं पूरी तवज्जो से अपने इम्तिहान देना चाहती हूँ। इसलिए मेरे वालिदैन ने कहा था कि 2 माह के बाद शादी कर दी जाएगी। ये रिश्ता मेरे बहनोई के खालाजाद से तय हुआ था, जिसके घर हम दावत पर गए थे। और वो लड़का जो मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था, मेरी बहन का कहना था कि तुम उस लड़के को पसंद आ गई हो। उसी ने अपने माँ बाप से कहा था कि वो अगर शादी करेगा तो तुमसे ही करेगा। इस तरह मेरा रिश्ता तय पा गया। अब भी मेरे माँ बाप की वही रूटीन थी। उन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि अब मैं घर में अकेली होती हूँ और वो जल्द ही घर वापस आ जाएं। मैं कॉलेज से वापस आकर खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती और देर तक उनका इंतज़ार करती रहती। लेकिन मेरे माँ बाप की वापसी रात को न जाने किस वक्त होती। तब तक मैं सो चुकी होती थी। मेरी बहन ने भी मेरे माँ बाप को कई बार वक्त पर घर आने की ताकीद की थी, लेकिन वो हर बार जल्दी आने का कहकर अपने ही वक्त पर आते थे। इस तरह अब उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने भी अपने आप को अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया था। एक दिन मेरे बाप का घर फ़ोन आया कि उन्हें अपनी मीटिंग के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना है, इसलिए वो आज रात को घर नहीं आ सकेंगे। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके अपने बाप के बारे में इत्तला दी और मैंने कहा कि आप आज जल्दी घर आ जाएं। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरी दोस्त बीमार है, मैं उसके साथ अस्पताल आई हुई हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं आज उसी के साथ रहूँ। तुम अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो और सो जाओ। मैं अपने माँ बाप की बेफिक्री पर हैरान हो रही थी कि उन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं कि उनकी जवान बेटी घर में अकेली है। घर में तो मुलाजमीन भी थे, लेकिन वो तो अपने क्वार्टरों में थे और मैं इतने बड़े घर में अकेली ही थी। इसलिए मैंने अपने माँ बाप की बात सुनते हुए और दिल में परेशान होते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे तरीके से बंद कर लिया और सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में और दिल में कोई अनजाना सा खौफ बैठा हुआ था। लेकिन मैंने मुख्तलिफ दुआओं का विर्द करते हुए अपनी आंखें बंद की और न जाने कितनी देर के बाद मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे घर के नीचे वाले पोर्शन में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं डर चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं खुद नीचे जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या चीज़ गिरी है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे अपने ऊपर वाले पोर्शन में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं खौफ से कांपने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इस घर में मौजूद है। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने अपनी माँ को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन मुसलसल बेल जा रही थी, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था और बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ कमरे के करीब तरीन आती जा रही थी और मैं परेशान हो रही थी। इतनी देर में कमरे के दरवाजे के हैंडल को किसी ने जोर से घुमाया, लेकिन अंदर से लॉक लगा हुआ था। अब तो मैं परेशान हो गई और अपने बेड से उठकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो चुकी थी। कोई मुसलसल दरवाजे के हैंडल को घुमा रहा था और साथ ही दरवाजे को खटखटा रहा था। मैं अपनी चीखों को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं अपना बचाव कैसे करूं, क्योंकि ये कोई 1 या 2 अफराद नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और ये 3 से 4 अफराद लग रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम लोग नीचे के कमरों से सफाया करो और अलमारियों को अच्छे तरीके से चेक कर लो। मैं बार बार अपने माँ बाप को फ़ोन कर रही थी कि घर में डाकू घुस आए हैं और मुझे तो मुलाजमीन पर भी हैरत हो रही थी कि वो कहाँ जाकर सो गए हैं। उन्हें इस बात की खबर कैसे दूँ? अभी मैं ये बात सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुला और मैं डर चुकी थी। मैंने कमरे के अंदर एक शख्स को दाखिल होते हुए देखा, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को भी काले रंग के मास्क से ढांपा हुआ था। उस शख्स की आंखें बेहद सुर्ख थीं। मैंने जब उसको देखा तो मैं भागते हुए वॉशरूम में जाने लगी, लेकिन उस शख्स ने मुझे पीछे बालों से ही पकड़ लिया और मेरी कोशिश को नाकाम बना दिया। मैंने उस शख्स से अपने आप को छुड़वाने की बेहद कोशिश की, लेकिन मेरी तमाम हिम्मत और कोशिश जवाब दे चुकी थी, क्योंकि वो एक ताकतवर शख्स था और मैं एक कमज़ोर और लाचार लड़की थी। मैं ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन उस शख्स ने मेरे मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया था और मेरी चीखों का गला घोंट दिया था।
इस तरह मेरे साथ उसने वो कुछ किया जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। उस शख्स ने मेरी इज्जत पर हमला किया और मेरी इज्जत दागदार करके चला गया। मैं गायब दिमागी के साथ दीवार के साथ लगकर बैठी हुई थी और न जाने मुझे ऐसे बैठे हुए कितनी ही देर गुजर चुकी थी। आखिरकार मैं खुद में हिम्मत पैदा करते हुए उठी और अपनी हालत दुरुस्त की और कमरे से बाहर आई तो मैंने मुलाजिमीन को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि बेटा आप ठीक हैं? मैं अपने साथ हुए जुल्म के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। मैंने कहा कि तुम लोग कहाँ चले गए थे? घर में डाकू घुस आए थे। उन्होंने कहा कि उन डाकुओं ने हमें बेहोश कर दिया था। अब जब हमें होश आया है तो हम फौरन आए हैं। इस तरह उन्होंने मेरे माँ बाप को इत्तला दी। मेरे माँ बाप भागे चले आए। उन्होंने पूरे घर में सामान बिखरा हुआ देखा कि घर में जितने भी कीमती जेवरात और कीमती चीज़ें थीं वो लोग उठाकर ले जा चुके थे। इस तरह मेरी बहन को भी घर में होने वाले वाक़े के बारे में इल्म हुआ तो वो भी काफ़ी परेशान हुई। लेकिन मैंने अपने साथ हुए जुल्म और ज़्यादती के बारे में किसी को भी नहीं बताया और ये बात मैंने अपने दिल में ही छुपा ली थी क्योंकि 2 माह के बाद मेरी शादी थी और अगर ये बात ख़ानदान वालों को पता चल जाती तो मैं किसी के भी सवालों का सामना नहीं कर सकती थी और अगर ये बात ससुराल वालों को पता चल जाती तो मेरा तो रिश्ता टूटना ही था, इसके साथ मेरी बहन की भी शादी खतरे में पड़ जानी थी। इस तरह मैंने इस बात को अपने दिल में ही दबा लिया और अपने दिल को दिलासा देने लगी। मेरे वालिदैन ने पुलिस को भी इत्तला दी कि हमारे घर में डकैती हो चुकी है। पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई की लेकिन इन कोशिशों के बावजूद उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लग सका था। मेरे दादा दादी को भी जब इत्तला मिली तो वो भी हमारे घर आए और अफसोस का इजहार किया। मैं तकरीबन 1 हफ्ते के बाद कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी लेकिन अभी भी रात को खौफ से मुझे नींद नहीं आती थी। अब मेरी माँ ने घर से निकलना बंद कर दिया था और अब मैं सोच रही थी कि मेरे वालिदैन का अब एहतियात करने का क्या फ़ायदा। जो कुछ होना था वो तो हो चुका था लेकिन मैं उन्हें अपने बारे में नहीं बता सकी और कॉलेज में भी मैं सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती। इस वाक़े को तकरीबन 1 माह गुजर चुका था कि मुझे अपनी तबीयत काफ़ी दिनों से थकी हुई और बोझल सी महसूस हो रही थी और मेरे दिल में किसी बात का खदशा आ रहा था लेकिन मैं इस डर और खौफ को कोई ज़बान नहीं देना चाहती थी, इसलिए अभी मैं इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी। एक दिन मैं क्लास में बैठी लेक्चर ले रही थी। जब मैं क्लास से बाहर आने लगी तो मेरा सर एकदम से चकरा गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब मैं अपनी तबीयत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और टेस्ट किया और डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई उसको सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं हामिला हूँ और इस खबर ने मेरे होशो हवास गुम कर दिए थे। मैं खामोशी से घर वापस आ गई थी। मैं इस बात की किसी को भी भिनक पड़ने नहीं देना चाहती थी और सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं इस मसले से कैसे छुटकारा हासिल करूं। मेरे जहन में ये भी ख्याल आया कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ ताकि इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकूं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की मुझ में दोबारा हिम्मत नहीं हुई। इसी तरह दिन गुजरते रहे और मेरी शादी का वक्त करीब आ गया। आखिरकार इन्हीं परेशानियों में मेरी शादी के फंक्शन भी आ गए। सब लोगों ने गुजरे हुए वाक़े को मेरी परेशानी की वजह समझा और सब लोगों ने मुझे समझाया कि जो होना था हो चुका, शुक्र करो कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो भी माली नुकसान हुआ है वो किसी न किसी तरह पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं किसी को अपने नुकसान के बारे में नहीं बता सकती थी जो मेरे साथ हो चुका था। इसी तरह मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपनी शादी पर दिल से खुश नहीं थी क्योंकि जो बात मैंने अपने दिल में छुपाई थी मुझे उसका बेहद दुख और मलाल था। मेरी बहन भी मेरी शादी पर शिरकत करने के लिए बैरून मुल्क से वापस आ चुकी थी और वो मुझे उदास देखकर परेशान हो रही थी। वो समझ रही थी कि शायद मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। उसने मुझसे कई बार इस बारे में सवाल किया था। मेरा दिल किया मैं अपनी बहन को सारा सच बता दूँ, लेकिन फिर खामोश हो जाती कि न जाने मेरी इस बात का क्या नतीजा निकलेगा। इसलिए मेरी बहन ने मुझे काफ़ी नसीहतों और हिदायतों के साथ घर से रुखसत किया। जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल वालों ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया। मेरे ससुराल वाले बेहद अच्छे लोग थे और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ धोखा कर रही हूँ। मेरा शौहर भी एक अच्छा इंसान था। उसने मुझसे प्यार भरी बातें की।
जब मुझसे मेरा शौहर प्यार भरी बातें कर रहा था तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं एक अच्छे इंसान के काबिल नहीं हूँ। काश उसे मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। लेकिन मेरा शौहर मेरी बेहद इज्जत करता था और कई बार तो मेरे पास बैठ जाता और मेरी टांगें दबाना शुरू कर देता। मैं हैरान होती कि वो मेरी टांगें क्यों दबा रहा है और वो मुझे कहता कि बस तुम आराम करो। मैं अपने शौहर की इस आदत के बारे में बड़ी हैरान थी कि वो मेरे करीब नहीं आता था। रात के वक्त मुझसे किसी न किसी काम का कहकर कमरे से बाहर चला जाता था और अगले दिन सुबह आता। मैं शर्म के मारे उससे कोई भी सवाल नहीं कर सकती थी और ना ही मैंने अपनी सास से अपने शौहर की इस आदत के बारे में कोई बात की, क्योंकि अगर मैं अपनी सास से इस बारे में बात करती तो वो न जाने कैसा महसूस करती कि मैं उन्हें उनके बेटे के बारे में गलत बात बता रही हूँ। इसीलिए मैंने भी इस मामले में खामोशी इख्तियार की। मेरी सास एक लेडी डॉक्टर थी और शहर के बड़े अस्पताल में काम करती थी। जब भी वो मेरे पास बैठती तो मेरी तरफ बड़े ही गौर से देखती और मैं उनके इस तरह देखने पर घबरा जाती थी। मैंने अपनी तबीयत का किसी पर भी जाहिर नहीं होने दिया था। मेरी बहन का भी मुझे दिन में 1 बार या 2 बार फ़ोन आ जाता। मैं फ़ोन पर भी उनसे मुख्तसर सी बात करती थी। वो मुझे कहती कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो। वो मुझसे मेरे चुप रहने की वजह पूछती तो मैं उन्हें टाल देती कि ये आपका वहम है। लेकिन वो कहती कि ज़रूर कोई ना कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। लेकिन मैं उसे मुतमईन कर देती थी और फ़ोन बंद कर देती। मैं शादी के बाद अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई थी। सिर्फ उनसे भी फ़ोन पर ही बात हो जाती थी। उन्होंने कई दफ़ा मुझे कहा कि तुम हमारे घर रहने के लिए आओ, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वही मुझसे 1 या 2 बार मिलने आए थे। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरे साथ इतना बुरा हो चुका था। मेरा उस घर में जाने को दिल नहीं कर रहा था। इसी तरह मेरी शादी को 2 माह गुजर चुके थे और मैं परेशान हो रही थी कि अगर मेरी हालत के बारे में मेरे ससुराल वालों को पता चल गया, वो तो खुश होंगे, लेकिन मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि मैं और मेरा शौहर ही हकीकत के बारे में जानते थे कि मेरा शौहर मेरे तो करीब भी नहीं आया था। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं उस वक्त से डर रही थी और इसी परेशानी को सोचते हुए मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। मेरी सास ने जब मुझे देखा कि ना तो मैं ठीक तरीके से खाना खाती हूँ और चेहरे की रंगत भी पहले से ज़्यादा पीलाहट ज़दा हो गई है, उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे कहा कि मेरे साथ अस्पताल चलो। लेकिन मैं अपनी सास के साथ अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। मैं उन्हें मना कर रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई और मैं घबरा रही थी कि अब तो मेरा राज खुलकर सबके सामने आ जाएगा और मैं किस किस के सवालों का जवाब दूंगी। मैं दिल से दुआ कर रही थी कि मेरी सास का इरादा बदल जाए और वो मुझे अस्पताल लेकर ना जाएं। लेकिन मेरी दुआएं कबूल ना हुईं और मेरी सास मुझे अपने साथ ले गई। अस्पताल में जाकर उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठा दिया और कहने लगी कि मैं कुछ देर के बाद आती हूँ। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और मेरा दिल कांप रहा था। कुछ देर के बाद मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेड पर लेट जाओ। मैं हैरान हो रही थी कि उन्होंने ना तो मेरे कोई टेस्ट किए हैं और वो मुझे लेटने के लिए कह रही हैं। मैं उनकी बात नहीं मान रही थी। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं जानती हूँ कि तुम हामिला हो। जब उन्होंने ये बात की तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि उन्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ है। ये राज तो मैं ही जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम शादी से पहले हामिला हो गई थी। जब मेरी सास ने ये बात कही तो मैं शदीद शर्मिंदा हुई और मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें गरक हो जाऊं। मैंने अपनी नज़रें ना उठाईं और सर झुका लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। इस तरह उन्होंने मेरा मुकम्मल चेकअप किया, कुछ टेस्ट भी करवाए, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा था कि वो मेरे राज के बारे में कैसे जानती हैं। हालांकि मैंने अपने घर में भी किसी से ये बात नहीं की थी। इस तरह मुकम्मल चेकअप के बाद और टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे दवाएं लेकर दी और कहने लगी कि आओ घर चलते हैं। मैं उनके साथ घर आ गई और उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। मैं हैरान हो रही थी कि अगर वो मेरे बारे में जान चुकी हैं तो वो मुझसे इतने अच्छे तरीके से कैसे पेश आ रही हैं, और मैं ये सच जल्द से जल्द जानना चाहती थी। इसीलिए जब घर आए और उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि आप मुझे सारी बात बताएं।
तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं पहले तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। इस तरह मेरी सास कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर के बाद मेरे लिए खाना तैयार करके लेकर आई। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और दवा दी और कहने लगी कि जिस दिन तुम अपना चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, उसी दिन मैं भी उसी अस्पताल में किसी काम के सिलसिले में गई थी। मैं तुम्हें उस अस्पताल में देखकर हैरान हो गई थी, और जब मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि ये मरीज़ किसके लिए आई है, तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम अपने चेकअप के लिए आई हो। और जब मुझे ये बात पता चली कि तुम उम्मीद से हो, तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल चुकी थी कि मेरे बेटे की होने वाली बीवी शादी से पहले ही हामिला हो चुकी है। मुझे तुम पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मेरा दिल किया कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे बारे में सारा सच बताऊं और वो तुमसे रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी बहू लाना नहीं चाहती थी जो शादी से पहले ही उम्मीद से हो, जिसका किरदार ही अच्छा ना हो। जब मैं घर वापस आई और मैंने अपने बेटे को तुम्हारे बारे में बताया, तो मेरे बेटे ने कहा कि आप जो कह रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी होने वाली बीवी बेगुनाह है। मेरे बेटे ने मेरी किसी भी बात का यकीन ना किया और मुझे अपने बेटे पर भी बेतहाशा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी माँ को ही गलत कह रहा था। जो कुछ मैं अपनी आंखों से देखकर आई थी, वो उस पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने उस डॉक्टर के ज़रिए से तुम्हारी रिपोर्ट हासिल की और अपने बेटे को दिखाई। मेरे बेटे ने तब भी तुम्हारी कोई गलती ना निकाली। मैं हैरान हो रही थी कि मेरा बेटा इतने सबूत देखने के बावजूद भी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मैंने अपने बेटे के रवैये पर भी गौर किया कि वो सारी रात रोता रहता और लॉन में चक्कर लगाता रहता। मैंने अपने बेटे को परेशान देखा तो मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि कहीं मेरा बेटा ही इस सब का जिम्मेदार तो नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए इतना जोर लगाया था। हम अपने बेटे की शादी अभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब तुम हमारे घर आई और तुम्हें उसने देखा, तो तभी उसने इस बात की रट लगाई हुई थी कि वो जल्द अज जल्द तुमसे शादी करना चाहता है। एक दिन मैंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोच रहे हो, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो। हम तुम्हारी कहीं और अच्छी लड़की से शादी करवाएंगे। उसने कहा कि मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने किए हुए अमल की वजह से परेशान हूँ, जो मुझसे खता हो चुकी है। मैंने जब अपने बेटे की ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गई। उसने बताना शुरू किया कि मेरे दोस्त एडवेंचर के लिए बड़े बड़े काम करते थे। एक दिन उन्होंने मजाक मजाक में एक दूसरे से शर्त लगाई कि वो किसी घर में चोरी करेंगे, और मुझे भी इस काम में उन्होंने शामिल कर लिया, हालांकि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था। इस तरह मेरे दोस्तों ने खुद के चेहरों को छुपा लिया और एक घर में घुस गए। मैं भी उनके साथ उस घर में घुस चुका था। ये सब काम हंसी मजाक में हो रहा था। मैं एक कमरे में गया तो मैंने कमरे में अपनी होने वाली बीवी को देखा। वो मुझसे बेहद खौफजदा हो चुकी थी। मैं उसके खौफ को कम करना चाहता था और वो और चीख और चिल्ला रही थी। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और इसी रोकने में मुझसे वो काम हो गया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब मेरे बेटे ने ये बात बताई तो मैंने अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा कि तुम ही इस सब के जिम्मेदार हो, मैं तो उस मासूम पर शक कर रही थी। मेरे बेटे ने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो उम्मीद से है और इसी गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूँ। मैं जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने जब ये सारी बात बताई तो मैं भी उसकी बात से इत्तेफाक करने लगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि अब तुम मज़ीद उस घर में रहो और लोगों के सवालों का सामना करो। जब मेरी सास ने ये सारी बातें मुझे बताईं तो मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी और देख रही थी कि खुदा बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। उसने मेरे साथ हुई ज्यादती का बेहतरीन अजर दिया है। लेकिन मुझे अपने शौहर पर बेहद गुस्सा था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं हरगिज़ भी यहाँ नहीं रहूँगी। उसने सब कुछ जानते बूझते हुए मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरी सास ने समझाया कि ये सब बातें जब लोगों को पता चलेंगी तो मुआशरे में कैसे रहोगी। जब मैं और तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र करो कि तुम्हारे शौहर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो भी अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है। वो तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगेगा, लेकिन वो तुमसे बात करने की हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहा।
इस तरह मैं अपनी सास की बात मानते हुए खामोश हो गई। मेरे शौहर ने भी मुझसे अपने किए हुए अमल की माफ़ी मांगी और मैंने भी अपने शौहर को माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं खुदा के इंसाफ पर राज़ी थी कि उसने मुझे उसी शख्स के साथ जोड़ दिया जो इस सब का जिम्मेदार था। मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी, लेकिन इस वाक़े का इल्म सिर्फ मुझे, मेरे शौहर या मेरी सास को है। मेरे माँ बाप को और मेरी बहन को जब यह खुशखबरी मिली तो वो बेहद खुश हुए और मुझे ढेरों दुआएं दी। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी और सब बातों को भूलकर ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।